Hello my dear students, my name is Pranjal Tripathi standing in front of you wishing you all a very good morning. Today I am gonna teach you the chapter 3 of physics, that is electricity. First of all, let us have a quick review of the topics that were being taught in the previous video. In the previous video I have taught you about what is Ohm's law, what is resistance, what do we mean by the factors that affect resistance. There were usually 4 factors. That resistance depends upon the temperature, area of cross section, length and the nature of the material. So today we are going to study about a new topic, that is resistivity. What do you mean by resistivity? Here comes our new topic, resistivity. While we were studying about the resistance, we have come across some points that resistance depends upon the area of cross section. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. We have studied that. Also, we have studied that resistance of any conductor is directly proportional to the length of that conductor. Means डायरेक्टली वैरी करेगा, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. Let us suppose this is equation 1 and this is equation 2. On combining these both equations, combining both these equations, we get R is proportional to L upon A, and when we remove this proportionality sign, we will add a constant. R is equal to a constant. This constant is known as rho. RHO. This constant is called as rho. We can call this symbol as rho. This rho is the resistivity of the conductor or any material. इस rho को ही हम बोलते हैं resistivity. Also, it is also known by another name. This rho is resistivity or we can call it specific resistance of conducting material or material. मीन्स कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टिंग मीडियम का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको कि हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से जिसका नाम है रो. ओके, नाउ हाउ वी विल डिस्क्राइब द रेजिस्टिविटी. अब हम लोग रेजिस्टिविटी को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
ये जानना जरूरी है कि रेजिस्टिविटी है क्या चीज। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि किसी भी ये मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे। एंड कंडक्टिविटी इज व्हाट? कंडक्टिविटी is that property by which that material conducts the electricity। दोनों ही अपोजिट हैं। कंडक्टिविटी क्या काम करेगी कि करंट फ्लो हो जिस भी कंडक्टिंग मीडियम में हो, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या करेगी? उसको रोकने का काम करेगी, करंट को रोकने का काम करेगी। तो हो गए ना दोनों अपोजिट। अब here we can see the formula of रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। यहां से हम लोग ये देख सकते हैं, अगर ए को ट्रांसफर किया जाए इक्वल टू के इधर, तो हम लोग देख सकते हैं आर इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल। यहां से रो का फॉर्मूला आ गया आर इंटू ए अपॉन एफ। This is the formula for specific resistivity, specific resistance और the resistivity। इसी को ही हम specific resistance या तो बोल सकते हैं या फिर resistivity भी बोल सकते हैं। Okay? Now, how will you give the definition of resistivity? तो definition देने के लिए हम लोग करते ये हैं कि let us suppose there is a conducting medium or wire of which the area of cross section is 1 meter square and its length is 1 meter। हम लोग कोई ऐसा एक वायर लेते हैं, let us suppose ये चौक नहीं एक वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? दिस एरिया, ये जो एरिया है आप पास से देखिए, क्लोज से, जो ये एरिया है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज इट्स लेंथ। ये जो लेंथ है, अगर ये दोनों चीजें यूनिट मान ली हमने, यूनिट मान ली मतलब 1 मान ली। लेट अस सपोज एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो रो इज इक्वल टू R into 1 upon 1, then we get rho is equal to resistivity is equal to the resistance। Okay, now we can define the resistivity as the resistance of the conductor when the area, the cross sectional area of the conductor is 1 meter square and the length is 1 meter। In other words, we can say the resistivity is equal to the resistance of conductor having unit cross sectional area and unit length, or we can say the resistivity of any conducting medium is equal to the resistance that flows into a substance having the volume 1 meter cube। अब बात आती है 1 मीटर क्यूब कैसे। लेट अस सपोज ये चीज आपको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूं कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली है क्या। बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज एक ये मटेरियल, तो अभी मैंने आपको जैसे चौक का एग्जांपल देके बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हियर वी कैन सी दिस एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेट अस सपोज दिस इज 1 मीटर स्क्वायर। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर कब होगी? जब ये हाइट इसकी 1 मीटर हो और इसकी डेप्थ जो ये भी 1 मीटर हो।
और हमने लेंथ भी 1 मीटर मानी, मीन्स कि ये इसकी जो लेंथ है ये भी 1 मीटर मानी। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दिस, ये आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया। लेंथ जो है इसकी वो भी 1 मीटर हो। तो अगर इसको किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस फ्लो होगा इस मटेरियल जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, देन इट इज सेड टू बी द रेजिस्टिविटी। आप लोग देख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर, जितना रेजिस्टेंस इस पूरे मटेरियल में फ्लो करेगा या इस मटेरियल का जितना भी रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। सेम अगर कोई वायर ले लें, ये तो आपका था ट्यूब का एग्जांपल। अगर कोई वायर ले लें, let us suppose this cross sectional area is of 1 meter square and the length is 1 meter। तो अगर ऐसा कोई वायर है, जैसा कि अभी मैंने चौथा एग्जांपल आपको बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग मीडियम or conducting material is equal to the resistivity। is equal to the resistivity। समझ गए? अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, unit of किसी भी फॉर्मूले से किसी भी चीज की अगर यूनिट जो है वो निकालनी हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं उसका। द फॉर्मूला इज रो इज इक्वल टू आर area of cross section upon length, then the unit of resistivity is equal to the unit of R। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटा, यहां पर आ गई यूनिट ओम मीटर, इसी को बोलते हैं ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, ये जो है यूनिट है रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड किन फैक्टर्स पर करती है। इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। रेजिस्टिविटी जो है 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। फैक्टर्स affecting resistivity। Basically, resistivity depends upon 2 factors. These 2 factors are
First one is nature of material. Second one is temperature of material. तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी सबसे पहली बात यह है कि रेजिस्टिविटी है क्या, हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, अपनी एक टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने की। तो उसकी सबकी हर एक मटेरियल की अपनी एक इंटरनल, कह सकते हैं कि इंटरनल प्रॉपर्टी होगी अलग अलग, कि कोई एक मटेरियल बाय चांस हमने मान लिए फॉर एग्जांपल कि दो मटेरियल्स मान लिए, लेट अस सपोज देयर आर टू metals, one is copper and other one is aluminum. Copper, aluminum. एक बार हमने कॉपर का लिया, एक बार लिया एल्यूमिनियम। दोनों का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। अब इन दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम और लेंथ भी सेम, बट क्या ये दोनों एक ही चीज? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज वन इज कॉपर अदर इज एल्यूमिनियम। ये डिफाइन कैसे हुआ? डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो इनका नाम अलग है ना। डिफरेंस इज इन देयर नेचर, डिफरेंस इज इन देयर एटॉमिक डेंसिटीज, डिफरेंस is in their resistivity। तभी एक को बोला गया कॉपर है और दूसरा जो है मेटल उसको बोला गया एल्युमिनियम। अगर डिफरेंस नहीं होगा नेचर में तो सभी मेटल्स एक जैसे ही लगेंगे ना। इसीलिए बोला गया कि एटॉमिक डेंसिटीज अलग है, उनकी रेजिस्टिविटी अलग है, उनकी टेंडेंसीज अलग हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसीज अलग है। That's why we call that the resistivity depend on the nature of the material। कॉपर की कुछ अलग टेंडेंसी होगी करंट को अपोज करने की, एल्यूमिनियम की अलग डेंसिटी, अलग जो है टेंडेंसी होगी, एल्यूमिनियम की अलग टेंडेंसी होगी। कॉपर हो सकता है ज्यादा अच्छे से जो रेजिस्टिविटी शो कर रहा है, एल्यूमिनियम की उतनी रेजिस्टिविटी ना हो। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट। तो आप ये समझ गए कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि अगर दो मटेरियल है, दोनों का नेचर अलग है तो उनकी रेजिस्टिविटी भी अलग होगी। Now coming on the temperature of material, in case of metals, जब मेटल के केस की हम बात करेंगे तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये केस है मेटल्स का, या हम कह सकते हैं कंडक्टर्स का। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर भी कुछ होते हैं जिनमें कंडक्शन क्या इजीली नहीं होता, तो उस केस में क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब रो डिक्रीज होगा।
This is in case of semiconductor. ओके, अब आप लोग समझ गए। इंसुलेटर के केस में क्या होता है? इंसुलेटर के केस में तो फ्लो होगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, तो रेजिस्टिविटी उनकी कुछ होगी नहीं, जीरो होगी। तो ये बात थी रेजिस्टिविटी की। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क। दिस टॉपिक इज वेल एक्सप्लेन्ड। अगर कोई भी आपको इवन अ सिंगल डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू।